Student, I am Dr. A.S. Kandhari, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. The title of our presentation is Plant Tissue Culture, PTC, Cell Potency. In this lecture, we are going to learn what is cell potency. Let us start. The contents: cell potency, totipotency, and significance of totipotency. So this is the content of our presentation. So let us begin with the concept, which is an important concept, that is cell potency. Naturally every cell variably retains potency to replicate and regenerate whole organism artificially. So in laboratory, it is now possible to regenerate entire organism from a single cell. So therefore, it is the potency or capacity or ability of a well-developed cell to regenerate entire organism in vitro. So in laboratory, it is possible to cultivate a cell or tissue, and we can convert this tissue or cell artificially into an entire organism. And this capacity of the cell is called cell potency. But this cell potency is variable. Not all the cells are similarly potent to regenerate entire organism. So the potency of cell depends upon the ability of regeneration and differentiation. Different categories of potencies of cell are proposed. तो इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि नेचुरली सेल के अंदर एक कैपेसिटी होता है. कोई भी सेल, प्लांट का स्पेशली, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल स्पेशली, उसके अंदर कैपेसिटी होता है कि पूरा ऑर्गेनिज्म जनरेट करें. और वो ऑर्गेनिज्म जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो हर सेल की डिफरेंट होती है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्पेशलाइजेशन. वो सेल कहाँ से हमने ली है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेल का जो पोटेंसी होता है, रीजनरेटिव कैपेसिटी होता है, वो कितना होता है. सो इट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओरिजिन. Accordingly, these capacities are harnessed in plant tissue culture, that is PTC. So, cell potency or capacity of the cell to replicate and regenerate and differentiate into entire organism is the basis of plant tissue culture. तो plant tissue culture के अंदर ये plant cell की regenerative capacity जो होती है, वो capacity बहुत important होती है. और उसी कैपेसिटी के हिसाब से और उसी कैपेसिटी के आधार पर ही प्लांट टिश्यू कल्चर ये टेक्निक चलती है. सो देयरफॉर सेल पोटेंसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन प्लांट टिश्यू कल्चर. सो लेट अस सी द इम्पॉर्टेंट पोटेंसी, दैट इज़ टोटिपोटेंसी. सो व्हाट इज़ दिस टोटिपोटेंसी? द साइंटिस्ट Gottlieb Haberland, a German botanist, in 1902 discovered the ability of a plant cell to regenerate into entire organism under appropriate condition. तो ये जो साइंटिस्ट है हैबरलैंड, ये जर्मन के साइंटिस्ट थे. इन्होंने 1902 में डिस्कवर किया कि प्लांट के सेल के अंदर एक कैपेसिटी होती है. कोई भी प्लांट की सेल, उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि पूरा के पूरा प्लांट रीजनरेट करें. और ये कैपेसिटी उन्होंने डिस्कवर की है. एंड दिस कैपेसिटी बिकेम द बेसिस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, एट इज PTC इन मॉडर्न ईरा. सो दिस इज़ द फोटोग्राफ ऑफ हैबरलैंड. तो ये साइंटिस्ट है. सो ही हैज़ discovered this ability of the plant cell. Now definition:
इसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे हम कि ये टोटिपोटेंसी क्या होती है, प्लांट सेल की जो एबिलिटी है पूरा प्लांट रीजनरेट करने की. सो व्हाट दैट टोटिपोटेंसी इज. टोटिपोटेंसी means total regenerative potentiality of a cell, especially plant cell. We are talking about the plant cell. So totipotency का मतलब होता है कि total regenerative potentiality of a cell और plant cell. तो ये plant cell की एक कैपेसिटी होती है, कोई भी plant cell की, जो पूरा के पूरा प्लांट रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखता है. Therefore, it is defined as the genetic ability of a cell to grow, divide, regenerate and differentiate into an entire organism from which it is derived is called totipotency of the cell. यानी कि टोटिपोटेंसी ऐसी प्लांट सेल की क्षमता है, एक जनुकीय और जेनेटिक कैपेसिटी है, बिकॉज जेनेटिक्स इज द बेसिस ऑफ लाइफ. देयरफॉर द जेनेटिक एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू ग्रो, डिवाइड, regenerate and differentiate into an entire organism from which it is derived is called totipotency of a cell. तो ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैपेसिटी है प्लांट सेल की, जिससे वो प्लांट की ग्रोथ होती है, डिवीजन होता है और रीजनरेशन होता है एंड डिफरेंशिएशन भी होता है, ताकि पूरा के पूरा प्लांट प्रोड्यूस हो सके. तो इस क्षमता को, प्लांट की सेल की इस क्षमता को कहते हैं टोटिपोटेंसी, isn't it? So this is the important and significant aspect of totipotency. तो ये वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर. जेनेटिक एबिलिटी, तो ये जेनेटिक एबिलिटी क्या करने की जेनेटिक एबिलिटी, तो वो प्लांट सेल को बढ़ने की, उसको डिवाइड करने की, उसका रीजनरेशन करने की, डिफरेंशिएट होने की कैपेसिटी, ताकि पूरा के पूरा ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट बन सके. तो ये प्लांट सेल की जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसे ही कहते हैं हम टोटिपोटेंसी. सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, एंड इट इज़ important ability of the plant called totipotency, and this became the basis of plant tissue culture. Now let us see the types of cell potencies. नेचर के अंदर सेल के अलग अलग पोटेंसीज है, जिसकी वजह से हम ये प्लांट टिश्यू कल्चर कर सकते हैं. सो टोटिपोटेंसी सबसे टॉप पे है. टोटिपोटेंसी इज़ द प्राइम capacity of the plant cell. So totipotency is the capacity which enables the plant cell to produce entire organism, entire plant. टोटिपोटेंसी यानी कि टोटल पोटेंसी. तो टोटल पोटेंसी का मतलब होता है टोटल प्लांट रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ द सेल. तो यहाँ पे मैंने लिखा है टोटिपोटेंसी का मतलब ही होता है कि प्रोड्यूस एंटायर ऑर्गेनिज्म और एंटायर प्लांट. सो दिस एबिलिटी इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी. अनदर वर्ड इज दैट प्लूरिपोटेंसी. प्लूरिपोटेंसी इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मेनी ऑर्गन्स बट नॉट एंटायर ऑर्गेनिज्म. सो लेट अस सी द डिफरेंस. ये यहाँ पे ये फ़र्क है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? टोटिपोटेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ द सेल to produce entire organism, whereas pluripotency is the ability of plant cell to produce many organs but not the entire organism. बहुत सारे organs ये pluripotent cell बना सकती हैं, लेकिन पूरा के पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं डेवलप कर सकती है. पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करने की कैपेसिटी टोटिपोटेंसी में होती है. जो सेल के अंदर टोटिपोटेंसी की एबिलिटी है, that cell produces entire organism. Then
multipotency is another kind of capacity of the cell. The multipotent cell is able to produce few organs but not entire organism. अभी ये प्लूरीपोटेंसी की जो कैपेसिटी है उससे कम होती है मल्टीपोटेंसी की कैपेसिटी, isn't it? The multipotent cell is less competent than pluripotent cell, isn't it? Then oligopotency is there. Oligopotent cell produces some type of tissue but not entire organism. So now here you can see this oligopotency is again lesser kind of potency than multipotency. And finally unipotency, that is the capacity of cell to produce single type of tissue but not entire organism. Now if you keenly observe these kinds of potencies, cell potencies, starting from totipotency, pluripotency, multipotency, oligopotency and unipotency. So I have placed these potencies in decreasing order. Okay. The totipotency is the capacity of the cell, plant cell, to generate entire organism, and then gradually the cell potency decreases in this direction. Gradually, totipotency is the top potency of the cell, pluripotency is lesser than the totipotency, then multipotency is further lesser than pluripotency, oligopotency is lesser than multipotency and unipotency is lesser than oligopotency. तो इस तरह से हम देखते हैं कि टोटिपोटेंसी से लेकर के प्लूरीपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी, ओलिगोपोटेंसी एंड यूनिपोटेंसी, ये ग्रेजुअली इनकी कैपेसिटी कम कम होते चले जाती है. एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी सिर्फ टोटिपोटेंसी सेल में होती है और ग्रेजुअली धीरे धीरे वो कम कम होते चली जाती है. तो इस प्रकार से ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंसीज वी फाइंड इन नेचर, isn't it? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सेल होती है उसकी पोटेंसी टोटिपोटेंसी से लेकर के यूनिपोटेंसी की तरफ वो डिक्रीज़ होते चले जाती है, कम कम होते चले जाती है, isn't it? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये टोटिपोटेंसी के अंदर पूरा के पूरा प्लांट रीजनरेट हो सकता है, लेकिन जब हम नीचे देखते चले जाएंगे प्लूरिपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी, ओलिगोपोटेंसी और यूनिपोटेंसी, तो एंटायर ऑर्गेनिज्म जनरेट करने की कैपेसिटी इज़ डिक्रीजिंग. सो डिक्रीजिंग potentialities of the different cells from top to bottom. So I have indicated this thing in descending kind of a arrow. So these are the types of cell potencies. Now there is one important question that may pop up in your mind. Why cell potencies differ when all cell originate from a single zygote? अब ये पूरे के पूरे जो सेल्स होते हैं प्लांट के एक ही ज़ाइगोट से तैयार होते हैं. तो ज़ाइगोट कैसा बनता है? तो मेल फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होने के बाद ज़ाइगोट बनता है एंड दिस इज़ ए डिप्लॉयड सेल. ज़ाइगोट इज़ ए डिप्लॉयड सेल एंड दिस डिप्लॉयड सिंगल सेल हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटायर प्लांट. तो प्रश्न यह है कि ये ज़ाइगोट से ही प्लांट के पूरे ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि स्टेम है, लीफ है, रूट है, फ्लावर है. लेकिन ज़ाइगोट के अंदर जो टोटिपोटेंसी है उस प्रकार की टोटिपोटेंसी लीफ के सेल के अंदर जो सेल होती है उसके अंदर नहीं होती है. स्टेम के अंदर जो सेल होती है उसकी टोटिपोटेंट कैपेसिटी नहीं होती है. रूट के अंदर जो भी सेल है उसकी टोटिपोटेंट कैपेसिटी नहीं होती है. लेकिन ज़ाइगोट के अंदर जो कैपेसिटी है वो दैट इज़ टोटिपोटेंट, क्योंकि ज़ाइगोट हैज़ द कैपेसिटी टू जनरेट एंटायर प्लांट. सो ऐसा क्यों होता है? तो इस प्रश्न के कुछ जवाब यहाँ हम देने की कोशिश करेंगे.
Totipotency, pluripotency, multipotency oligopotency and unipotency. So this is the decreasing order of potencies, cell potencies, isn't it? So in this hierarchy or in this order, totipotency is the most capable potency, and it is called a full potency of the cell to generate entire organism, and this full potency gradually decreases in this order, isn't it? So ऐसा क्यों होता है? Why this thing happen? The answer is that zygote is a totipotent cell having ability to produce entire organism. So as I told you, zygote has the capacity to generate or to produce entire plant. Zygote is fully totipotent cell having ability to produce entire organism, whereas other cells that have undergone differentiation lose some ability to form entire organism. अब दूसरे जो सेल बनते हैं zygote से, वो क्या हो जाता है? These cells other than zygotic cell, they undergo differentiation. अब ग्रोथ के प्रोसेस में क्या होता है कि zygote से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद zygote के सेल्स बाद में की स्टेज में डिफरेंशिएट होते चले जाते हैं, अलग अलग होते चले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि zygote से बनते हैं अलग अलग टिश्यूज़ और अलग अलग टिश्यूज़ से बनते हैं अलग अलग ऑर्गन्स, जैसे कि लीव्स है, स्टेम है, रूट है, बाद में फ्लावर फ्रूट आते हैं. तो ये जो डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस शुरू हो जाता है zygotic डेवलपमेंट के बाद, दिस डिफरेंशिएशन causes reduction in totipotency of the cell. zygote में जो totipotency की कैपेसिटी है, that capacity gradually decreases in differentiated cells. जैसा जैसा सेल डिफरेंशिएट होते चले जाएगा, so cell become different from the zygotic cell, and this differentiation process gradually decreases the cell potency. So therefore that is the reason, isn't it, why totipotency or totipotent cell is more capable compared to rest of the cell potencies. So that is the most important reason, that is the differentiation, isn't it, in growth phases. जैसे कि सेल zygote से अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं, तो सेल का डिफरेंशिएशन होते चले जाता है, और ये डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में सेल का टोटिपोटेंसी का जो कैपेसिटी होता है वो कम कम होते चले जाता है, इज़न्ट इट. उसके बाद में अलग रीज़न है. ये दूसरा रीज़न जो होता है, इट इज़ अ डेविएशन फ्रॉम डिप्लॉइडी. डिप्लॉइड सेल इज़ मोस्ट पोटेंट सेल, isn't it? Totipotency is the ability related with diploid cell. जो सेल डिप्लॉयड होता है वो टोटीपोटेंट होता है, isn't it? So टोटीपोटेंसी की एबिलिटी जो सेल रखता है वो डिप्लॉयड होना चाहिए, isn't it? अगर वो सेल डिप्लॉयड नहीं है और डिप्लॉयडी से अलग कुछ होता है, यानी कि पॉलीप्लॉयडी, यूप्लॉयडी, अनयूप्लॉयडी, अगर ये होता है तो सेल का टोटीपोटेंट कैपेसिटी निकल जाता है या कम हो जाता है, isn't it? So here you have to emphasize that deviation from diploidy to polyploidy, euploidy and uneuploidy adversely affect totipotency. तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इट इज़ रिलेटेड टू जेनेटिक एबिलिटी ऑफ द सेल पोटेंसी. तो जैसा डिप्लॉइडी यानी डिप्लॉइड नेचर ऑफ द सेल से अलग कुछ बन जाता है, यानी कि पॉलीप्लॉइडी हो जाता है, यूप्लॉइडी हो जाता है, अनयूप्लॉइडी हो जाता है, तो सेल का टोटीपोटेंसी का जो क्षमता है वो कम होते चले जाता है. सो देयरफॉर डिफरेंशिएशन इज़ वन रीज़न. Another reason is polyploidy, euploidy and uneuploidy. These are the reasons that cause decrease in totipotency. उसके बाद में और एक रीज़न है, that is differential hormonal absorption affects totipotency.
तो जैसे हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का प्रोसेस जैसे जैसे बढ़ते चले जाता है और सेल ग्रेजुअली स्पेशलाइज्ड बनते चले जाता है, तो उसका हार्मोनल एब्सॉर्प्शन भी डिफर होते चले जाता है। सो दिस डिफरेंशियल हार्मोनल एब्सॉर्प्शन अफेक्ट्स टोटिपोटेंसी। तो इसके वजह से भी टोटिपोटेंसी जो है सेल का कम होते चले जाता है। सो देयरफॉर ज़ायगोट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट टोटिपोटेंट सेल। ज़ायगोट के अंदर ही ये कैपेसिटी होता है टोटिपोटेंसी का, और बाद में जैसा डिफरेंशिएशन होते चले जाएगा उसमें पॉलीप्लाइडी, यूप्लाइडी, अनयूप्लाइड भी होते चले जाएगा। सो देयरफॉर दीज आर टोटिपोटेंसीज of the cell gradually decreases. Hormonal absorption is also one of the important reason. So these are the reasons why the totipotency of other cells other than zygote cells decreases. These are the reasons. But we can reverse this process in plant tissue culture. ये जो हो रहा है यहाँ पे नेचुरली ये होते रहता है डिफरेंशिएशन, उसके बाद में डिप्लॉइडी का नेचर चेंज होकर पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, अनप्लॉइडी, उसके बाद में हार्मोनल एब्सॉर्प्शन का कैपेसिटी भी बदलते चले जाता है। हेट्रोजेनिटी आ जाता है सेल के अंदर। तो हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ द सेल आल्सो वन ऑफ द रीज़न टू डिक्रीज द टोटिपोटेंसी ऑफ द सेल। तो ये नेचर के अंदर होते रहता है। तो ये नेचुरल जो फिनोमेना है, वी कैन रिवर्स दिस नेचुरल फिनोमेना इन प्लांट टिश्यू कल्चर। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. Then here is further illustration. I am trying to put why the zygotic cell loses totipotency. Now here again I have shown here this zygote, and zygote is the powerful potent cell, fully potent cell. As and when the zygote undergo growth, division and differentiation, जैसा ये ज़ायगोट का ग्रोथ हो जाएगा, सेल डिवीजन बढ़ते जाएगा, देन डिफरेंशिएशन विल टेक्स प्लेस. सो दिस डिफरेंशिएशन ब्रिंग्स जेनेटिक एंड हार्मोनल प्रोसेसिंग, इज़न्ट इट? तो ओरिजिनली ज़ायगोट के अंदर जो जेनेटिक कंपोजिशन है, हार्मोनल कंपोजिशन है, दैट गोज़ ऑन चेंजिंग. इसमें अल्टरेशन हो जाता है, इज़न्ट इट? सो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस जब होती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, दिस इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. एंड व्हेन डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस, देयर इज अल्टरेशन एंड चेंज इन जेनेटिक एंड हार्मोनल बैलेंसेस. सो जेनेटिक एंड हार्मोनल प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, इज़न्ट इट? तो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस में क्या हो जाता है, डिफरेंट टिश्यू बनते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं. So during this physiological process, there is alteration in genetic and hormonal capabilities, isn't it? So therefore, this zygote loses the capacity of टोटिपोटेंसी. zygotic सेल में जो टोटिपोटेंसी होती है वो ग्रेजुअली कम होते चली जाती है बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन. उसके बाद में क्या होता है, ग्रोथ होता है, फिर सेल का ग्रोथ भी होता है, एंड देन सेल बिकम स्पेशलाइज्ड, इज़न्ट इट? ग्रोथ एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल एंड टिश्यू. सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, इज़न्ट इट? ग्रेजुअली दिस प्रोसेस ऑकर. डिफरेंशिएशन होने के बाद वो सेल का ग्रोथ होगा, इलैंगुएशन होगा, एंड दैट सेल अक्वायर स्पेशल फंक्शन. और ये स्पेशलाइजेशन होने की वजह से भी सेल का टोटिपोटेंसी कम होते चले जाता है, isn't it? So growth and specialization of cell and tissue, this is a process in growth, and ultimately we get the organ with special function. जैसे कि लीफ है, स्टेम है, रूट है. तो इस प्रकार के प्लांट के अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे, और ये जब ऑर्गन्स बनते हैं तो these organs acquire a special function. So this speciality, specification and specialization is one of the most important cause that cause gradual decrease in totipotency. So these are the physiological processes from zygote to special organ, and these steps gradually decreases the
capacity, that is totipotency. So here I have written totipotency of the zygote gradually decreases through these steps, through these physiological steps. जैसा भी ये फिजियोलॉजिकल स्टेप्स होते चले जाएंगे तो धीरे 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 ये इस डायरेक्शन में टोटिपोटेंसी जो है ये आगे आने वाले सेल्स और टिश्यू का टोटिपोटेंसी कम होते चले जाता है. नाउ दिस इज द नेचुरल प्रोसेस, बट वी कैन रिवर्स दिस प्रोसेस in vitro. We can modify this process by treating these special differentiated cells with hormones. So we can what can say, this process can be reversed, isn't it? So this process can be reversed in vitro, in laboratory, by treating these special cells or specialized cells with phytohormone, प्लांट हार्मोन्स. इसको कहते हैं प्लांट हार्मोन्स. प्लांट के अंदर अलग अलग किस्म के हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइलिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दीज phytohormones can bring about de-differentiation. De-differentiation का प्रोसेस ये फाइटोहार्मोन के माध्यम से हम ला सकते हैं. जो सेल डिफरेंशिएट हो गया है उसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि डी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो डी डिफरेंशिएशन नीडेड टू मेक स्पेशलाइज्ड सेल ए रीपोटेंट सेल. उसको अगर रिवर्स करना है, उसको ये स्पेशल सेल को फिर टोटिपोटेंट बनाना है, तो वी हैव टू यूज़ सम laboratory methods, laboratory chemicals, artificial chemicals, isn't it? Auxins, cytokinins, gibberellins, 3,4-D, etc., etc. So in laboratory we can generate totipotent cell through this process. Through this process, totipotency decreases, and through this process totipotency can be reversed. So in this way, totipotency is the basis of plant tissue culture. So this thing we have to emphasize here, and this totipotency gradually decreases through these physiological and genetical alterations. तो इस बात को हमें समझना है. तो टोटिपोटेंसी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्षमता है सेल की, जो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर इस्तेमाल की जाती है, और उसके ही आधार पर प्लांट टिश्यू कल्चर चलता है. सो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. थोड़ा सा एग्जांपल देके मैं आपको बताऊंगा. अब यहाँ पे देखिए, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. सो आई हैव शोन हियर स्पर्म एंड एग. सो मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज to form a zygote, isn't it? So these are the haploid cells, isn't it? one N. Now it is converted into 2N. So here this is a haploid cell and this is haploid cell. This is male gamete, this is female gamete. Fertilization occur and zygote is formed, isn't it? So this zygote is a diploid single cell. And this is the totipotent cell, and this cell give rise to this zygote is totipotent, and this totipotent zygote give rise to entire plant body. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो zygote है ये पूरे के पूरे प्लांट को बनाता है, isn't it? So therefore this zygote is a total having total potency, that is totipotency. So zygote किस organs को तैयार करता है? So zygote can produce flower, leaves, stem, root, etc. यानी कि entire plant is generated through this zygote. तो ये zygote totipotent है. अब यहाँ का जो सेल है, that cell which is present in the leaf, we can convert this specialized cell. अब ये जो लीफ है ये स्पेशल बन गया है, इसके अंदर के जो सेल है ये स्पेशल सेल बन गए.
तो स्पेशल इन द सेंस इनका फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस। सो दीज सेल्स बिकेम फोटोसिंथेसिस। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये ज़ायगोटिक सेल को कोई फंक्शन असाइन नहीं किया गया है, इज इट? दिस ज़ायगोटिक सेल डोंट हैव ए फोटोसिंथेटिक फंक्शन, लेकिन ग्रेजुअली जब इसका डिफरेंशिएशन होगा, ग्रोथ होगा और इसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, तो यही ज़ायगोटिक सेल से ये फोटोसिंथेटिक सेल बनता है। यही ज़ायगोटिक सेल से ही स्टेम का सेल बनता है, जिसके अंदर अलग अलग किस्म के सेल होते हैं, एपिडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल, कॉर्टेक्स, वैस्कुलर टिश्यूज़ एक्सेट्रा, ये सब बनते हैं, isn't it, through this zygotic cell. And this zygotic cell is capable to generate these root cells, isn't it? So you can see here, this single zygotic cell has the capacity to generate all these organs, but these organs now this plant लीफ सेल्स, ये जो प्लांट के अंदर लीफ सेल है, ये क्या हो गए, मेसोफिल सेल जो है, पैरेन्काइमेटस सेल, इनका फंक्शन अभी असाइन हो गया, इनको एक फंक्शन मिल गया है। कौन सा फंक्शन? फोटोसिंथेसिस करने का। अभी ये फोटोसिंथेसिस ही करेंगे, ये प्लांट नहीं जनरेट करेंगे, लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम से वी कैन ट्रीट एंड वी कैन प्रोसेस ऑल दीज फोटोसिंथेटिक सेल्स एंड वी कैन रिवर्ट इट इनटू ज़ायगोटिक सेल्स। ये रिवर्शन हम कर सकते हैं with the help of plant tissue culture, isn't it? So leaf, stem and root cells are turned specialized in function, that is unipotent. अब ये यूनिपोटेंट हो गए, खाली एक ही किस्म के सेल को ये तैयार करेंगे। लीफ वाले सेल लीफ ही बनाएंगे, isn't it? रूट वाले सेल नए नए रूट्स के सेल बनाएंगे, स्टेम वाले सेल नए नए स्टेम वाले ही सेल बनाएंगे। सो ये स्पेशलाइज्ड हो गए, these cells are specialized, isn't it? But we can revert this process through PTC, that is plant tissue culture, isn't it? By treating these cells. अब ये पूरे के पूरे जो cells है, इनके ऊपर प्रोसेस करके we can convert these specialized cells again into a totipotent cell, isn't it? Through de-differentiation and redifferentiation. ये प्रोसेस है, डी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। डिफ्रेंशिएशन होने के बाद ऐसा बनता है, तो उसको फिर हम रिवर्स करके डी डिफ्रेंशिएशन करेंगे और डी डिफ्रेंशिएशन करके फिर री डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो दिस प्रोसेस ऑकर इन PTC और प्लांट टिश्यू कल्चर। सो इन दिस वे यू विल फाइंड दैट द हिडन कैपेसिटी ऑफ एवरी प्लांट सेल कैन बी utilized through plant tissue culture to make these cells a totipotent cell. तो टोटीपोटेंसी का जो कैपेसिटी हो सेल के अंदर होता ही है, रिटेन होता ही है, ज़ायगोटिक एबिलिटी वो रिटेन होता ही है, लेकिन उसको एक्टिवेट करना पड़ता है थ्रू दिस प्लांट टिश्यू कल्चर प्रोसेस. So in this way you will find that plant cell has a great capacity, that is totipotency. So this is the thing, that is totipotency. So now what is the significance of totipotency? इसका महत्व क्या होता है? टोटिपोटेंसी जो होती है, इसका महत्व क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में? Totipotency of somatic cell is fundamental in PTC, that is plant tissue culture, to preserve, propagate important plant species. तो ये हम कर सकते हैं. अभी बहुत सारे प्लांट स्पीसीज जो है पृथ्वी के ऊपर से नष्ट हो रहे हैं, isn't it? There are many plants and they are very very significant from medicinal plant point of view. और ऐसे भी कुछ प्लांट है वो एंडेंजर हो गए, यानी कि these plants are now becoming extinct. तो ऐसे जो प्लांट्स है जो बहुत ही कम हो गए हैं पृथ्वी के ऊपर से, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको प्रोपेगेट करने के लिए वी कैन यूज़ दिस टेक्निक ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर थ्रू टोटिपोटेंसी. सो देयरफॉर somatic cell can be turned into totipotent cell. Isn't it? It is very very important in plant tissue culture.
इन विट्रो मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट सेल इज़ फिजिबल। तो मैनिपुलेशन करके हम आज के ज़माने में बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, एंड these plant products can be procured through plant tissue culture because of this plant cell potency, that is totipotency, isn't it? ये टोटिपोटेंसी अगर ना होती तो हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर काम ही नहीं करता, isn't it? हम प्लांट टिश्यू कल्चर ये जो टेक्निक है वो शुरू ही नहीं कर पाते। Therefore, totipotency is very very basic to the plant tissue culture. So in vitro means laboratory के अंदर हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, प्लांट सेल को अलग अलग ऑर्गन्स में हम बढ़ा सकते हैं। We can multiply the special organs of plant such as leaf cell, stem cell, then root cell, pollen grain cells, etc. etc. We can develop or you can manipulate in laboratory. Totipotent cell could be preserved in liquid nitrogen for longer duration, hence used for germ plasm preservation of endangered and economically important plant species. So germ plasm preservation is also very very important. ये चीज़ भी बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है। जर्म प्लाज्म जो है हर एक स्पेसीज़ का प्रिजर्व होना चाहिए, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ स्पेसीज़ एंड दिस प्लांट स्पेसीज़ आर वेरी important from medicinal point of view, or genetic manipulation and genetic studies can be carried out with this some plants. So therefore germ plasm of these plants, these significant and economically important plants, is feasible through plant tissue culture. So totipotent capacities of the cell should be preserved, and it can be preserved in liquid nitrogen for longer duration. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टोटिपोटेंसी ये प्लांट टिश्यू कल्चर का बेसिस है, और इससे हम प्लांट टिश्यू कल्चर का जो नया दौर है उसमें अलग अलग किस्म के प्लांट के ऊपर मैनिपुलेशन कर सकते हैं. सो आई थिंक दिस मच थिंग्स आर sufficient for this lecture. So now you have to see this presentation repeatedly and prepare your own notes. तो आप इस प्रेजेंटेशन को देख करके नोट्स बना सकते हैं. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू.